Hello students, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to your semester 5 in your TY BBA. In today's video, we will learn about your women entrepreneurs. In previous video, we have learned about rural entrepreneur. In that, you have learned meaning of rural entrepreneur, need for rural entrepreneurship, barriers to rural entrepreneurship, and even you have learned how to develop a rural entrepreneurship. In this video you will learn the basic concept of rural entrepreneur, and you will learn about is barriers of women entrepreneurs. Now the question arises, what is meant by women entrepreneurs? So women entrepreneurs may be defined as a woman or a group of women who initiate, who ऑर्गेनाइज एंड रन बिजनेस एंटरप्राइज. वुमन एंटरप्रेन्योर को उस वे में डिफाइन करेंगे का तो इंडिविजुअल वुमन और अ ग्रुप ऑफ वुमन who take an initiative, who organize and run the business enterprise, उसको हम बोलेंगे women entrepreneurs. As an entrepreneurs like other entrepreneurs, a woman entrepreneur has also to perform all other function which are involved in starting an enterprise. लाइक अदर्स एंटरप्रेनर्स जो दूसरे एंटरप्रेनर्स करते हैं, जैसे कि रूरल एंटरप्रेनर्स है, वैसे वुमेन एंटरप्रेनर्स को भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे जो बेसिक एंटरप्रेनर्स को परफॉर्म करने हैं फॉर स्टार्टिंग हीज एन एंटरप्राइजेस. दैट इज अ वुमेन एंटरप्रेनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर. In women entrepreneur, you will learn the concept of women entrepreneurs, which a basic concept I have already given a rough idea about women entrepreneurs. You will learn the problems or the barriers of women entrepreneurs. Let's understand the basic concept or definition of women entrepreneurs. Like I've already said that a woman entrepreneur may be defined as being an entrepreneur being started by woman is considered to be a woman entrepreneur, or entrepreneurship being run and managed and organized by a woman or a group of women is considered to be a woman entrepreneurs. Now let's understand the definition of woman entrepreneur. The definition given by the government of India has defined a woman entrepreneur based on the woman participation. If entrepreneur is starting a woman, if a entrepreneur has started his entrepreneurship at that particular time, if the participation of women are less, that is less than 50%, that entrepreneurship will not be considered to be a woman entrepreneur. So women entrepreneurs may be defined based on his woman participation in equity also and in employment also, and on that base only we will define the woman entrepreneurs. To make me बी रिमेंबर दैट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डिफाइन करना है तो हमें दो चीज को हमें ध्यान में रख के हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डिफाइन करना है. फर्स्ट वन इज अ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी, दैट इज फाइनेंस, एंड सेकेंड वन इज योर एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हिज बिजनेस एंटरप्राइज. उसी के बेस में आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डिफाइन होगा. Now, the definition given by the government of India, an enterprise owned and controlled by women. पहले में क्या बोला है कि कोई भी एंटरप्राइज जो ओन हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है वुमेन से, उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर कहेंगे. और उसमें कंडीशन क्या है, हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल. वुमेन का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कितना होना चाहिए, 51% ऑफ द कैपिटल. मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट किया है उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि वुमेन का होना चाहिए, दैट इज 51%. और जो भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है उसमें से एटलीस्ट 51% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो वो वुमेन को कंट्रीब्यूट किए. सो एंड गिव at least 51% of employment generated in the enterprise to women. So आपका women entrepreneur जो डिफाइन किया है as per the government of India, कैसे हमें याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट, the enterprise being owned and controlled by women. ठीक है, उसको भी हम वुमेन एंटरप्रेन्योर बोलेंगे. सेकंड क्या बोला है, हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट. कितना मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, वुमेन का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, 51% ऑफ द कैपिटल, एंड गिवन एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन. उसी एंटरप्राइज को हम बोलेंगे वुमेन एंटरप्राइज. That is your woman entrepreneur. That is your definition of woman entrepreneur. Hope you are clear with the definition of woman entrepreneurs.
Now, next one topic is your barriers of women entrepreneurs. That is a problem being faced by a woman entrepreneur. First one, that is your problem of finance. You know very well that finance is said to be a blood for any organization. कोई भी organization है, कोई भी entrepreneurship है, उसमें finance जो होता है ना वो blood कहलाता है. तभी आपका organization का तो आपका entrepreneurship smooth way में रन हो. और हमें ये पता है कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो ज्यादा सफर कहाँ से होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस के बेस पे. ठीक है, सो हाउएवर वी नो दैट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस. क्यों शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होता है? बिकॉज वुमेन डू नॉट हैव जनरली प्रॉपर्टी ऑन देयर नेम. उसकी ज्यादातर उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके खुद के नाम पे नहीं होते हैं और वो बैरियर एक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेन एवर यू वॉन्ट टू हायर अ फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. और सेकेंड क्या है, बैंक जो कंसिडर वुमन को लेस क्रेडिट वर्थिनेस कंसिडर करती है. बैंक कंसिडर वुमन हैज अ लेस क्रेडिट वर्थिनेस बिकॉज दे फील दैट दे कैन लीव द बिजनेस एनी टाइम. ठीक है, हमें पता है कि वुमेन को कभी भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, फैमिली की सिचुएशन है, तो वो कभी भी अपनी बिजनेस जो है वो छोड़ के जा सकती है. और उसी के कारण बैंक्स जो होते हैं ना वो ज्यादातर क्रेडिट वर्थिनेस वुमेन को लेस कंसिडर करती है. एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई अ वुमन एंटरप्राइज फेल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस. इसी के कारण वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्यों इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है? बिकॉज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेल due to shortage of finance. That is your basic problems in terms of starting a woman entrepreneurs. Next one is your limited liability or limited mobility. ठीक है, not liability, it is a mobility. Unlike men, women cannot easily move from one place to another. ठीक है, जैसे कि मैन जो होगी वो इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस से वो ज्यादा तक मूव कर सकते हैं. बट बीइंग अ वुमन यू कांट फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आपको सेफ्टी भी देखनी होती है, उसके कारण आप इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वुमन कैन नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली वे में अपने बिजनेस में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं लाइक मैन. ठीक है, और यही मेन रीजन है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन में, वो इजिली मूव नहीं हो सकती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड इसी के रीजन के बेस में वो अपना एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस अपने बिजनेस में नहीं दे सकती है. एंड दैट इज अ बेसिक रीजन कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कभी भी ये ज्यादा डेवलप नहीं होता है. तो लिमिटेड मोबिलिटी के कारण भी प्रॉब्लम्स फेस होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. नेक्स्ट वन इज योर फैमिली टाइज. ठीक है, बीइंग अ वुमेन, ठीक है, बीइंग इन इंडिया ज्यादातर या मेनली वुमेन की ड्यूटी क्या होती है? टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन और अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली. इन इंडिया मेनली वुमेन का यही टेंडेंसी है कि उसको फैमिली को देखना है, उसको बच्चे को देखना है, मतलब चिल्ड्रन को देखना है. इन केस ऑफ मैरिड वुमन, ठीक है, आपको पता है इन केस ऑफ मैरिड वुमन शी हैज टू बैलेंस बिटवीन हर बिजनेस ऑल्सो एंड फैमिली ऑल्सो. और वो बैलेंस नहीं कर पाई तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टी के साथ वो फेस करना होता है. सो शी कैन नॉट गिव अ प्रॉपर टाइम टू हर बिजनेस. ठीक है, फैमिली टाइम ज्यादा होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, बच्चे को देखना होता है, तो यहाँ पे अपने बिजनेस में वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकती है. और कभी कभी सपोर्ट एंड अप्रूवल नहीं मिलता है अपने हस्बैंड से भी. ठीक है, तभी भी वो नेसेसरी कंडीशन जो हमें वुमेन की एंट्री होनी चाहिए बिजनेस में, जस्ट बिकॉज कि कभी कभी आपके हस्बैंड्स के सपोर्ट अप्रूवल नहीं मिलते हैं, उसके कारण भी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं है. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा अपनी फैमिली टाइज के कारण अपनी डिफिकल्टीज जो है वो ज्यादा फेस करनी होती है बिकॉज ही नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द फैमिलीज एंड द बिजनेस. तो उसके कारण भी आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ज्यादा तक डेवलप नहीं हुआ है. नेक्स्ट वन इज योर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. वी नो दैट इन इंडिया वी हैव अ मेल डोमिनेंसी स्टिल इन इंडिया. इंडिया में ज्यादा तक मेल डोमिनेंसी बहुत सारा है. इन सम एरिया ऑफ इंडिया वुमन आर लुक्ड एज अ अबला नारी. ठीक है, आप देखोगे इन सम एरिया ऑफ इंडिया वुमन को अभी भी अबले नारी के बेस पे ही रिस्पेक्ट दी जाती है. वुमेन सफर फ्रॉम मेल रिजर्वेशन अबाउट द वुमन रोल. ठीक है, एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली टू दैट ओनली. ठीक है, अभी भी आप देखोगे कुछ एरिया में मेल रिजर्वेशन जो होता है वो ज्यादा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज्यादा है और उसी के कारण वुमन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जैसे कि मैन को हमें दे, मतलब लाइक मैन. सो दिस इज अ बैरियर टू वुमन एंट्री इनटू बिजनेस.
So just because of male dominated society, we as a woman fail to be an entry, मतलब face a barrier to enter in the business. अभी ज़्यादातर just because of the development of the country we are still moving towards to a new development, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, पर पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ ऐसे होती थी और उसके कारण अभी तक वुमेन डेवलपमेंट ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, बट सिनेरियो भी चेंज हो रहा है. वी आर ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन हैज़ एन इक्वल, बट स्टिल सर्टन एरिया में वो डेवलप नहीं हुआ है, सर्टन सोसाइटी में ऐसा डेवलप नहीं हुआ है, सर्टन कल्चर में वो डेवलप नहीं हुआ, तो उसके कारण भी वुमेन की एंट्री इन बिजनेस में ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का कारण बैरियर हो सकता है. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एजुकेशन. we know that illiteracy जो होता है ना, that is a root cause of social economic problem, ठीक है, due to lack of education and that to a quality education women are not aware of business technology and market and even knowledge, ठीक है. लैक ऑफ एजुकेशन वुमन को ज़्यादा तक नहीं मिलता है और उसके कारण उसको बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं होते, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं होते, मार्केट के बारे में अवेयर नहीं होते, नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है. और ये लैक ऑफ एजुकेशन जो होता है ना, उसके कारण कॉन्फिडेंस भी आपका लैक होता है अमंग द वुमन, एंड लैक ऑफ एजुकेशन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स फॉर वुमन इन सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. So because of the lack of education, you cannot able to start and run the business efficient way, or you can start and take an initiative to start in your woman enterprise. That is also a basic barrier in your woman entrepreneur. Next one is your last one, that is raw risk bearing capacity. Now what is mean by raw risk bearing capacity? Women जो है ना इंडिया में ज्यादातर प्रोटेक्टेड लाइफ जीना चाहती है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दे आर लेस एजुकेटेड और इकोनॉमिकली दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है. ऑल दिस रिड्यूस्ड एबिलिटी टू टेक रिस्क व्हिच अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है. हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टन होता है, और ज्यादातर हमारे इंडिया की वुमेन जो होती है ना वो प्रोटेक्टेड लाइफ जीना चाहती है, वो ज्यादा तक रिस्क लेना नहीं चाहती, बिकॉज एजुकेटेड कभी भी एजुकेशन जो होता है वो लेस होता है, इकोनॉमिकली वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकली दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, एंड ये सारी रीजंस है जिसके कारण उसकी एबिलिटी टू टेक अ रिस्क जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, और रिस्क अराइज होती है हमारी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस में. तो रिस्क बेयरिंग इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. वी नो दैट वी हैव लर्न इन ऑलरेडी इन स्टार्टिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकर एबिलिटी होनी चाहिए, और वुमेन एंटरप्रेन्योर को जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइफ, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट अपना रिस्क जो है वो रिड्यूस कर लेती है, और उसके कारण भी अपना वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो ज्यादातर डेवलप नहीं हुआ. तो दिस आर द बेसिक रीजन व्हाई देयर आर द बैरियर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. So in this video we have learned about the basic definition of woman entrepreneur. You need to remember the woman entrepreneur definition in 3 parts. First, the entrepreneur being owned and controlled by woman, ठीक है. नेक्स्ट यू नीड टू रिमेम्बर थे 50% जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कैपिटल में वो मिनिमम वुमन का कितना होना चाहिए 51%, एंड लास्ट वही आपका वुमन एंटरप्रेन्योर से जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना होना चाहिए 51% टू वुमन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए. And then you will learn about the barriers of the woman entrepreneur. Hope you are clear with this video. Do learn each and every topic and do watch the full video. The notes will be provided about this point, that is your woman entrepreneurs, and within the completion of the 50% portion of the chapter 1, that is unit 1, we will have a live section and we will take a revision section of this topic which are being covered in the video. Through a PPT we will learn each and every point once again, and we will have a discussion among the points which have already been taught in this your video section. Thank you students for